As we talk about Khazana, Khazana means very old association, very old friends who have supported us all along without even blinking an eyelid. There's one such major organization which has been with us in Khazana from the first year. I remember when I was in college, I started banking with Union Bank. And my first bank account was with Union Bank. At that point, I had never thought that I would meet Union Bank in a different role, in a different way, and I would work with them on this project. Union Bank has supported us from the first Khazana. And big hand for them. And they have supported us for last 17 years and very generously, without asking questions, and always there to help us. Today, we have Mr. Venkatesh of Union Bank here with us. I would like him to come on stage and say a couple of words to our August gathering here. Thank you, Pankaj. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great privilege and pleasure to me in front of all the great artists here, particularly Anup Jalota ji, Pankaj Udas ji, Talat Ajit ji, great artists on the universe. It's a Union Bank of India is proud to have such great artists with this Khazana. I congratulate the promoters of Khazana. Really, they have given an opportunity for a bank who doesn't look beyond the finance and business. And it's a festival of ghazals, actually. It's a great treasure. Because when I thought Khazana means bahut sara inke paas deposit hoga, paisa hoga, bahut sara hoga. So when I saw this festival of ghazals, really it's a great opportunity for Union Bank of India. पैसे business छोड़ के थोड़ा music या थोड़ा दिमाग थोड़ा ठंडा करने के लिए ghazals बहुत ज़रूरी है. When I was in college, I was really a fan of अनूप जलोटा जी और पंकज जी. हम सुनते थे चिट्ठी आई ऐसा ऐसा. तो आज रियली मेरा एक ड्रीम था कि ये लोगों को मैं मिलूं, इनसे मैं बात करूं. So really, I am personally, as a general manager of Union Bank of India and my publicity department, I am really done that. And I am proud of you, sir. Thank you so much for becoming my dream true. And जब तक खजाना रहेगा, Union Bank साथ चलेगा. That is my commitment to Khazana. It's a great noble cause because I'm also really a sufferer from this cancer. I lost my wife last year due to cancer. So really, I'm very proud कि cancer patients के लिए आप लोग कर रहे हैं. The first day I met the people of some representatives came to me and they were talking about the Khazana. So I was so impressed and sentimental about this program. And when I just heard that such a great artists are associated with this Khazana, so I was really felt very happy. So Union Bank is always with Khazana. Any development, any further going forward, we will be always supporting this event. And I wish this artist a great job, sir. You are doing for a noble cause. Union Bank will support this in future also. Thank you so much. Thank you, Mr. Venkatesh, for your kind words. We are also thankful to various other sponsors who have helped us continuously in the last 17 years. We have Exim Bank, which has supported us. We have India Oil. We have Tata Mutual Fund, Grover Zampa, and one and only Mr. Bandari, who keeps everyone in the right spirit during Khazana, for giving us the famous Kingfisher. We also have many artists whom I would like to talk about a little later. But at the same time, we also would like to thank Mr. Burma of
Oberoi Hotels, the Vice President. We would like to thank our compeers, Salim Arif, Rakshanda Khan, RJ Anmol, RJ Ruchi. And we also have an announcement to make that this year we have two very bright young poets. These poets are at the moment a sensation on all the social media. They are really writing very well. One is Ajay Pandey and the other poet is Alok Srivastav. They would be a part of Khazana this year. They would recite their poetry in the interim gaps where we have artist changeover and things like that. They would be reciting their poetry. In fact, Nayab told me, shared a very interesting incident with me. She said that last year she got a mail from somebody from Dubai asking for the details of the live streaming of Khazana. And the reason he gave was that he was having 100 odd people over at his house. He had put up a big screen and a projector, and he was going to stream Khazana live with his guests. He converted it into a mini Khazana in Dubai. And he did that for 2 nights. And I'm sure this year also he's been inquiring as to what are the details of live streaming, and we would like to have the same party in Dubai. I think that speaks a lot about the live streaming aspect of Khazana. A few years back, we joined hands with Hungama, which is one of the most prominent digital platform in the country. And Hungama came in as a partner. And Hungama has been doing live streaming of Khazana, and you'll be surprised that now Khazana is reaching Alaska, and Khazana is reaching Brazil, and Khazana is reaching in every part of the world. You should see when we see the live streaming, you'll be surprised that we get requests from people across, people from South Africa, people from America, people from Canada, requesting various ghazals, songs of their favorite artists. So this has been a great addition to a value addition, I will say, to Khazana, because live streaming and Hungama's partnership has brought Khazana on an international platform, on a very, very big platform, and for which we are very, very thankful to the entire team of Hungama, which is ably led by Shri Neeraj Roy. I would request Neeraj Roy to come up and say a couple of words. Thank you, Pankaj. I think today when we think about streaming and we talk about digital, it almost seems like second nature. But 7 years back when we started this wonderful association, all credit to all of you, Pankaj, the famous trio of Anup ji, Talat bhai, and Nayab, Sudeep ji, the entire association that we have had with the wonderful artists and the manner in which you have all encouraged and attempted to groom new talent. This year was particularly special because it's something that you spoke of a few years ago. You've always been wanting to leverage the digital platform to access and harness and reach out newer talent. And this year with Khazana, Artist Aloud, which is our platform for artists, over 1,000 artists across different genres, teamed up, and we were able to reach get entries from 75 cities in India in its first year itself. And some of those artists, which you all have obviously gone through the judging process, will also be showcased here. So we are
immensely delighted, proud, and privileged to be associated with Khazana. And we thank, the parents unit of the thalassaemic unit, the Cancer Patients AIDS Association, and the Oberoi Group, including all your partners, Union Bank, Exim Bank, Indian Oil, etc., and our radio partner, Radio Nasha, as this one big, you've given us a chance to be a part of this one big Khazana family, and we are truly delighted for that, and we will attempt to take this to more and more markets across the world. Thank you, Soumini, for the talent hunt, and I am really looking forward to getting bigger the next year. Maybe we would take it on a larger scale, and instead of 200, we'll have 2,000 entries, I'm sure. And I'll put all my colleagues in overwork mode, actually. I would also like to thank our radio partner, Radio Nasha, for all their support. And the Chief of Programming, Mr. Gaurav Sharma, was here. I would have invited him to say a couple of words, but I think he had some meeting and he had to leave, so he went away. But anyways, thank Radio Nasha, thank Gaurav. I would like to thank Gaurav for their unconditional support. Our official hoarding partner is Minimax, Mr. Arvind Bhandari. They have always stood by us, given us some amazing hoardings at key sites in Mumbai, and providing us hoardings all over the city. I'd like to thank Vaibhav Patil of Ginger PR for all his support. He does this absolutely without any fees. He does it out of passion, out of support to this cause. I'd like to thank Reva Udas for all the social media awareness campaign for Khazana. All the campaign is run by her. Obviously, I find it difficult to talk about it, but because she's my daughter, but my special thanks to Nayab Udas for putting together tremendous amount of efforts. Last 1 month I have not seen her because she works from 8 in the morning till 10 in the night every day, only for Khazana. Thank you, Nayab, for all your support. And this could not have been complete without the presence of all my dear friends from the media. Thank you so much for turning out here in large number. And thank you for your continued support for 17 years. I also would like to give a little, before I say thank you and goodbye, I'd like to mention that this year's lineup consists of renowned artists, which are Shri Anup Jalota, Janab Talat Aziz, Srimati Rekha Bhardwaj, Richa Sharma, Sudeep Banerjee. And then this year Khazana has a very, very special project, a special offering, a special presentation created by the generation next and most promising classical musicians. We have Srimati Kaushiki Chakrabarti, Shri Rakesh Chaurasia, Shri Purbayan Chatterjee, Shri Deepak Pandit, and Shri Ojas Adhya. They will be doing a fusion item, but with a flavor of ghazal, which would bring in the ghazal at an opportune moment in the fusion. This is something which we really are looking forward to. Then we have, on the second day, we have a very special item by a very, very, very famous Rajasthani folk artist, Shri Mame Khan ji. Mame Khan is very, very popular for his inimitable style. He is going to incorporate ghazal singing into his folk,
and do a presentation, special presentation for Khazana. We have some wonderful, promising, extremely talented youngsters whom we have really chosen because of on the merits of their talent, which are Prithvi Gandharva. Prithvi is here today. Divakar Meena, who's from Bhopal, very, very promising, very, very talented artist. We have Rajvinder Kaur, who's from Amritsar, again a very, very talented young lady. We have Gayatri Gayakwad from Pune, who's also very, very promising, a wonderful singer. And then we have these two artists, as I said, from the talent hunt, Aditya Lange from Jammu and Oshin Bhatia from Delhi. Then we have these two young, exceptionally talented young singers, Abhas and Shreyash. They would be doing a special presentation for Khazana. We've all heard, I'm sure, Abbas and Shreyas on various social platforms or otherwise on YouTube. I'm absolutely sure that they are really going to enthrall the audience this year in Khazana. I cannot say that sometimes I wonder as to how God gifts a musician, how God is kind to a musician. There is one such artist who's gifted, who's blessed, who's Sneha Shankar, who's an amazing singer. She's such a young girl. She's, I think, 11 years old. Sneha would be performing on one day. So this is the lineup of Khazana, which is quite exhaustive. And I feel that Khazana this year would certainly have tremendous amount of variety and entertainment. I once again thank you all for being here this afternoon and lending your support. Before I say bye, I would like very dear friend Shri Anup Jalota ji, who has been a part of this whole Khazana since the first year. In fact, the whole concept of Khazana came about and came around with the help of Talat Aziz and Anup Jalota. The three of us together conceived this and we kind of worked on this concept so that we can present Khazana. So I'd like to invite Anup Bhai to come and say a couple of words. एक बच्चा नदी में गिर गया। एक आदमी ने देखा, वो कूद गया उसको उठाने, निकालने, उसको निकाल लिया और उसके पेरेंट्स को वापस कर दिया। उसके मम्मी डैडी बड़े परेशान थे, उनको वापस कर दिया और ये कहा कि हमारा तो फ़र्ज़ है, डूब रहा था। तो उसके पेरेंट्स ने कहा वो तो ठीक है आप निकाल लाए, लेकिन इसकी टोपी कहाँ है? वो मुझे मिल गई। तो उनको बेटे की जगह ज़्यादा टोपी की चिंता ज़्यादा थी, वो कहाँ रह गई। देखिए, ख़जाना जो हम लोग 17 साल से कर रहे हैं, इसके दो मकसद हैं। पहला मकसद है कि आगे की जनरेशन तक हमको गज़ल ले जानी है, नहीं तो सब रैप गाने लगेंगे, क्या होगा इसका। तो उसको बचाने के लिए कि वो जनरेशन गज़ल समझे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यंग आर्टिस्ट पेश करते हैं। हम इसमें कोशिश करते हैं कि जो स्टैब्लिश्ड हैं वो तो हैं ही हैं, उनका बड़ा नाम है, हम लोग अब परफॉर्म करने नहीं आते यहाँ। ख़ास तौर पे मैं, पंकज भाई, तलत अज़ीज़, हम लोग यहाँ इसमें आते हैं कि इसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसमें काम किया जाए। पंकज भाई तो इतना थक जाते हैं कि इनका लास्ट आइटम रखा जाता है, तब तक इनकी हालत ख़राब हो गई होती है। उसके बाद गाते भी हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर परफॉर्म भी करना।
लेकिन हम लोग इसको अपना समझते हैं और इसको आगे भी हम अपना समझेंगे और काम करेंगे। मैं 17 साल से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं इसमें एक ख़ास चीज़ देख रहा हूँ कि हर साल नए नए आर्टिस्ट आए और उन्होंने अपनी जगह बनाई, जगह बना के उन्होंने इस गज़ल को और आगे बढ़ाया। ये सिलसिला तभी चल पाएगा जब हम लोग उन्हें चुन चुन के लाते रहेंगे। जैसे इस बार कॉन्टेस्ट हुआ है, इतने सारे शहरों से लोग आए हैं, उनको चुन के लाए हैं। मैं भी कोई भी मुश्किल हो, कहीं भी हो, पहुंच जाता हूं। इस बार मैं 28 को रात को 9:30 बजे लैंड करूंगा फ्रॉम ऑकलैंड और 12 बजे पहुंच के यहाँ गाना गाऊंगा। तो मैं उस वक्त मैं शायद यही फील कर रहा हूँ कि मैं फ़्लाइट में ही हूँ, बड़ी लंबी फ़्लाइट है। लेकिन यहाँ ना आना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े कॉज़ के साथ नाइंसाफ़ी करना है। तो पहला मकसद तो हमारा हो गया है कि हम गज़ल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगली जनरेशन तक ले जाना चाहते हैं। और दूसरा मकसद ये है कि हम कैंसर पेशेंट्स को उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए फंड्स इकट्ठा करके देना चाहते हैं। हम लोग पहले साल से कर रहे हैं, अब तक हो रहा है। और इसके लिए सपरू साहब, रेखा जी, उनकी पूरी टीम हम लोग का साथ देती है, हमको हिम्मत देती है कि हम ये काम करते रहें। पंकज जी का कमाल ये है कि अभी तक तो अकेले काम करते रहे, अब इनकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, उन्होंने भी साथ देना शुरू कर दिया और इतना काम करती हैं दोनों कि कमाल है। हम नायाब के टच में रहते हैं, पंकज भाई से ज़्यादा हम नायाब के टच में रहते हैं फ़ोन पे, और वो कोई ना कोई आइडियाज़ देती रहती है, कभी कभी सजेशन भी लेती है, पूछती रहती है। तो मैं ख़ास तौर पे चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां आप नायाब के लिए बजाएं। कहाँ पे है? बहुत विशेष इसके अंदर एनर्जी है जो बहुत अच्छे काम में यूज़ हो रही है। आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया ने यहाँ तक पहुँचा दिया इस प्रोग्राम को, कि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो गल्फ़ में हैं, जो इंग्लैंड में हैं, जो अमेरिका में हैं, वेस्ट इंडीज़ में हैं, जो ख़जाना के लिए फ़्लाई करके यहाँ आते हैं 2 दिन के लिए, इसी होटल में कमरा बुक करते हैं, यहीं रहते हैं और 2-3 दिन यहाँ रह के ख़जाना अटेंड करके वापस चले जाते हैं। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ और उन्हीं लोगों के लिए मैं पंकज भाई को कहता हूँ कि टिकट्स ज़रूर रखिएगा, क्योंकि टिकट्स तो मिलती नहीं इसकी। टिकट्स तो जो आप न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं उसके पहले ही सब बिक गई होती हैं, बचती नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए हमें रखनी पड़ती है जो इतनी दूर से ख़ास ख़जाना अटेंड करने आते हैं। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि ख़जाना यहाँ तक पहुँचा है कि हम इसको और आगे बढ़ाने की हिम्मत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। I would request Talat to say a couple of words, please. Ladies and gentlemen and my dear friends, Pankaj, Anup, आपने सब कुछ बता दिया और मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ कि बस ख़जाना जो है ये एक एक्चुअली फेस्टिवल नहीं है मेरे हिसाब से, ये एक मुहिम है, एक इट्स ए मूवमेंट आई थिंक, यानी ये मूवमेंट हर साल ये ताकतवर होता जा रहा है। तो शायद एक ऐसा वक्त आएगा कि फ़राख गोरखपुरी का शेर याद आ रहा है कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेगी हम असरो। आने वाली नस्लें मतलब आने वाली जनरेशन्स तुम पर फ़ख्र करेगी, दे विल बी प्राउड, जब उनको ध्यान आएगा कि तुमने ख़जाना को देखा है। तो ये मकाम आना चाहिए और आएगा इंशाल्लाह। और इसमें जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि
नया नया खून आ रहा है, नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, हमको पता नहीं है, जो गज़ल से उनका ताल्लुक़ बचपन से है, सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना है, और प्लेटफॉर्म जो है ख़जाना मिल रहा है, ख़जाने के ज़रिए उनका फ़न जो है वो दुनिया तक पहुंच रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी था। और 17 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि 17 नहीं, तो 100 साल आगे चल, हम रहेंगे न रहें, ये चलता रहेगा। दिस बिकम एन इंस्टीट्यूशन। अब जो नई पीढ़ी है वो उसको आगे ले जाएगी, हम रहें न रहें, ये काम ने सौंप दिया आप सबको। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जाने से पहले मैं आई वुड लाइक टू, एंड पंकज भी इस पर और अनूप जानते हैं कि I don't know, a lot of people don't know this from the Oberoi itself. I would like to thank specially Mr. Sanjeev Malhotra. He was the first person we contacted, and he was a senior vice president 2002 in the Oberoi. और एक फ़ोन कॉल पर उन्होंने कहा कि we are on. तो I thought I should put this on record. Yeah, I forget about it. तो चलिए, wish you all the best and hope for look forward, and of course Nayab, where are you? You're never. I would like you to come on stage. No, please. Come. अभी आजा, please आजा बेटा, आजा, come. Because after all, without your, अनु आप भी आ जाओ। मैं तो दुआ करता हूँ कि इस किस्म की औलाद किसी बाप को मिले तो वो बहुत खुशकिस्मत है। ये कौन है? पंजाब ये भाई, इनके पीछे ले रहा है। एक बोलो ना, ये आ रहा है। एक सेकंड बोलो। अरे प्रश्न थोड़ा सा आगे बाबा। ये भाई क्या है, दबा रहे हो सर? यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट कीजिए सेंटर में ऑल ऑफ यू सर, इधर। अरे यार सर यहाँ पे, चलो ठीक है सर, यहाँ पे सर, सामने सेंटर कैमरा। क्या खबर सर? एक पागल है। बहुत अच्छे, क्योंकि टैलेंट तो अलग अलग शहरों से आए हैं, गांव से आए हैं। हमने उन शहरों का नाम भी नहीं सुना, ऐसे जगह से आए हैं। मोर देन 70 सिटीज़। तो उसमें से चुनना इतना आसान नहीं था, लेकिन समय दिया, सब लोग बैठे, फाइनल में हम बैठे और हमने आर्टिस्ट चुने। देखिए, ऐसा है कि देसी घी खाने वाले तो कम ही होते हैं बाकी लोग तो डालडा ही खाते हैं लेकिन हम चाहते हैं देसी घी जो है ज़्यादा लोग खाएं। अच्छा जो म्यूज़िक है वो लोग ज़्यादा सुने, अच्छी पोइट्री है वो लोग ज़्यादा सुने, ये हमारी कोशिश है। तो हम देसी घी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट ऑलरेडी है ख़जाना के लिए, हम जानते हैं, क्योंकि हमको टिकट बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनाउंसमेंट से पहले फुल हो जाता है सब। इसी को हम चाहते हैं कि आगे और बढ़े, और आप सबके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। थैंक्स। देखो, टैलेंट तो बहुत है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था हमें कि किसको रखें किसको ना रखें। बहुत मुश्किल था, बिकॉज वो ऐसा बिल्कुल ऐसे चल रहा था। कभी हम सोचते थे कि शायद हम गलती तो नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि एक से एक, हाँ, सब में ये था कि मैच्योरिटी की ज़रूरत थी, वो तो वक्त के साथ आएगी, लेकिन जो काम है, जो उनमें टैलेंट है बहुत सारा, तो बड़ी मुश्किल से मैंने पंकज को ये बोला कि भाई अगले साल से हमको शायद ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा जो नया टैलेंट इसमें आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 2, मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल 6 और आ सकते थे,
इंस्टीट्यूट में देखा जाए तो एक बड़ा नाम है, और जब म्यूजिक की बात आती है कैंसर पेशेंट जो बीमारियाँ जिससे उनके लिए ये इंस्टीट्यूट करना, तो कितना कोई प्रेशर होता है अपने ऊपर? भाई अभी आप क्या बोल रहे हैं, आप समझा नहीं। कैंसर पेशेंट्स को इस बार हेल्प कर रहा है खजाना। नहीं नहीं, इस बार क्या, ये तो 17 साल से कर रहे हैं। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, कैंसर पेशेंट्स को हेल्प कर रहा है या ये चल ही रहा है, चाहे वो कैंसर पेशेंट्स हो या थैलेसीमिया हो, मतलब जिसको ज़रूरत है किसी चीज़ की वो इसके ज़रिए मदद मिल रही है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उनके लिए नहीं, हमारे लिए, कि हम इसके ज़रिए बन गए। तो ये इसमें जाइए मत ना, ये सब देखो, अगर किसी की आप मदद कर रहे हो तो वो गिनने में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो छोड़िए। सो सर गज़ल देखा जा रहा है कंपेयर टू अदर फॉर्म्स, गज़ल थोड़ा। अच्छा, ये आपका वो आ गया सवाल, फिर वही जो मैं जिसके बारे में मैं बोल रहा था। आप ये कह रहे हैं कि आप जो आजकल गज़ल का वो दौर नहीं रहा जो पहले था, नहीं था। अभी इसके लिए बहुत लंबा बोलना पड़ेगा और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इसके बारे में, तो अभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। जी, आजकल गज़ल का बिल्कुल दौर नहीं रहा, गज़ल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए आजकल ये ख़जाना जो है ना इतना पॉपुलर हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे यार, तुम समझे नहीं, तंज से बोल रहा हूँ मैं तंजिया बोल रहा हूँ, अब इसको तुम हेडलाइन मत बना देना। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आपके? देखो, गज़ल के सुनने वाले हैं, गज़ल के सुनने वाले बहुत सारे हैं, चाहे वो गज़ल हो या कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, क्लासिकल हो, फोक हो, उसके सुनने वाले हैं। और गज़ल में खासियत क्या बताऊँ, अगर सही गज़ल गाई जाए तो उसमें पोइट्री आती है और हिंदुस्तानी क्लासिकल आता है, दोनों का मिलाप है। आप कौन से फॉर्म ऑफ म्यूज़िक में ये मिलेगा आपको बताइए? क्लासिकल में नहीं मिलेगा, क्लासिकल में सिर्फ राग का विस्तार होता है, वो अलग ही क्षेत्र है। तो गज़ल में ही एक ऐसा ये मीडियम है जिसमें जो हमारी जो संस्कृति है, म्यूज़िकल और पोइट्री दोनों है। ये रेयर फॉर्म है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। दुनिया के कोई भी हिस्से में जाइए आप, कोई भी कंट्री में जाइए, उनके कल्चर में आपको गज़ल नहीं मिलेगी, आपको बैलेड्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे अलग अलग किस्म के पोइट्री मिलेगी। बट इस किस्म का जो रंग है और इसको जो ये गज़ल गायकी जो पॉपुलर किया गया, पॉपुलर हुई क्यों हुई? आज से नहीं, काफ़ी सदियों से चल रही है। बेगम अख्तर साहिबा के ज़माने से पहले से, तवाइफ़ों से होते होते, बेगम अख्तर साहिबा से होते होते, फिर फिल्मों में तलत महमूद साहब, फिर उसके बाद होते होते उससे सबसे पहला जो नाम था वो के एल सहगल का था। लोग बहुत भूल जाते हैं, के एल सहगल एक बड़े सुपरस्टार थे और वो गज़ल गाते थे, लाइव गाते थे। और फिर तलत महमूद साहब फिल्मों में, उसके बाद मेहदी हसन साहब। तो मेहदी हसन साहब के साथ तो मैं बहुत ख़ास रहा हूँ, मेरे गुरु रहे हैं वो। तो जो उन्होंने जो एक, फिर जगजीत सिंह साहब, भाई तो ये चल रहा है सिलसिला ना। क्यों चल रहा है? क्योंकि उस ज़माने में भी तो प्लेटफॉर्म उतने नहीं थे ना। कहाँ थे प्लेटफॉर्म? लोग सुने, कहाँ से आया ये प्लेटफॉर्म? सुनने वाले हैं तो ही आया प्लेटफॉर्म ना। अगर सुनने वाले नहीं रहेंगे तो फिर आप मुझसे क्यों बात करेंगे? क्योंकि आप ये जो ले रहे हैं इंटरव्यू, ये कोई देख रहा होगा, इसलिए तो आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना। ये तो अगर रेलेवेंट ही रहा तो क्यों लेंगे? मैं भी आपको क्यों टाइम आपका वेस्ट करूँगा मैं, राइट? सो गज़ल के लिए लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने चाहने वालों को, अपने पसंद? कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो इतने सालों से हम जो कर रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, आप उसको सराह रहे हैं, सुनते रहिएगा, सराहते रहिए। हम लोग आपकी वजह से हम यहाँ हैं, और जब तक आप लोग सुनते रहेंगे, आप लोग इनकरेज करते रहेंगे, हमारी बात छोड़िए, आगे की पीढ़ी भी जो है, ये जो फ़न है ये ज़िंदा रहेगा। बहुत खुशी की बात है कि खजाना 17th ईयर में प्रवेश कर चुका है। जब शुरू किया था तो ये उम्मीद नहीं थी कि साल 2 साल भी चले, क्योंकि हमें एक जिसको कहें कि इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये ख़जाना इतना लंबा चलेगा। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि आज किसी साहब ने, जब इंटरव्यू चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उन्होंने ये कहा कि ख़जाना अब एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। तो वो सुन के बहुत खुशी हुई कि ख़जाना साल दर साल
इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब 17वें साल में ऐसा लगता है कि ख़जाना ने बहुत ही बड़ा स्वरूप ले लिया है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ख़जाना के पीछे जो मकसद है वो इतना नेक है कि मैं समझता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा धनराशि इकट्ठी होगी, वो सब ख़जाने के लिए फ़ायदे की बात है। जी जी, ख़जाना जो है वो कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए होता है। मैं, तलत अज़ीज़ और अनूप जलोटा, हम तीनों ने जब इस प्रोग्राम के बारे में सोचा, इसका कॉन्सेप्ट बनाया, हम तीनों अच्छे दोस्त हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि ये एक गज़लों का एक फ़ेस्टिवल होना चाहिए। हिंदुस्तान में गज़लों का कोई फ़ेस्टिवल नहीं होता है, तो हमने कहा कि हम फ़ेस्टिवल शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि फ़ेस्टिवल शुरू करते हैं ज़रूर, लेकिन मालिक की दुआ से हम सब को नेम फेम वगैरह की अब कोई भूख नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा कि उसको एक ऐसे मकसद के लिए करना चाहिए कि जिससे हमारा समाज है उसको फ़ायदा हो और उसके साथ साथ गज़ल की खिदमत हो, क्योंकि हम चाहते थे कि भाई गज़ल गायकी जो है उसका परचम हमेशा जो है वो ऊंचा होना चाहिए और हमेशा पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। तो ख़जाना से हमें ये फ़ायदा हुआ कि ख़जाना में हम कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए पैसे भी इकट्ठा करते हैं और उसके साथ साथ हम गज़लों का प्रचार करते हैं और धीरे धीरे नए नए सिंगर्स जुड़ रहे हैं। ये साल ख़ास करके ख़जाना में 6 नए सिंगर जुड़े हैं, तो 6 नए यंग सिंगर्स के जो 22, 23, 24 साल की उम्र के हैं वो जुड़े हैं। तो उससे ये फ़ायदा है कि हमारी जो गज़ल की संस्कृति है, हमारा गज़ल का हमारी जो परंपरा है वो आगे बढ़ाने में हमें बहुत आसानी होगी। तो सर देखा गया है जिस तरह ऑडिशन के वक्त नए नए आर्टिस्ट या सिंगर्स आ रहे, कितना प्यार गज़ल को दे रहे, किस तरह का नया टैलेंट भी देखने को मिला है। टैलेंट जो है ना वो कमाल, हमें एक जिसको कहेंगे हम एक अचंभे में आ गए हम लोग, एक सरप्राइज़ हो गया हमें कि ये जो सारे सिंगर्स हैं वो बहुत यंग हैं। दूसरी बात ये है कि वो बहुत सोच समझ के गा रहे हैं, ऐसा नहीं कि गज़ल गाने के लिए गा रहे हैं, वो गज़ल को बिल्कुल सही ढंग से समझ के सोच के गा रहे हैं। और गज़ल में बिल्कुल इतनी रुचि है इन सब लोगों की कि वो जब गाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अपना, जिसको कहें कि अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा फोकस जो है उस पर लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कलाकारों की ज़रूरत है और ऐसे नौजवान कलाकार मिलेंगे तो गज़ल का भविष्य बिल्कुल सलामत है। तो गज़ल में क्या पहले ये कितना बदलाव आया है आज ऑडियंस में, जितना लोग नहीं, गज़ल के चाहने वाले वैसे के वैसे ही हैं पूरी दुनिया में। आज भी गज़ल के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और गज़ल जो चाहने वाले हैं वो गज़ल को हर वक्त सुनना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मुझे इस बात की खुशी है कि गज़ल सुनने वाले जो है उनकी संख्या में बहुत सारा इजाफा हुआ है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं और वो बहुत खुशी की बात है। हम तो यही दुआ करेंगे कि जैसे भाई तलत अज़ीज़ ने कहा कि ये 100 साल चले और उससे भी आगे चले, तो बस यही दुआएं हैं कि ख़जाना इसी तरह से चलता रहे, ख़जाना और बड़ा हो और ख़जाना के ज़रिए और आमदनी हो, ताकि हम जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिन थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की या कैंसर पेशेंट्स की, तो वो और अच्छी तरह से कर सकें।